میرے بھائیوں، اس کے بعد کا جو موضوع ہے وہ یہ موضوع ہے کہ ایک مسلم لڑکی کیسی ہو اور اولاد پر ماں باپ کے کیا حق ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ روزانہ کئی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر مرتد ہو رہی ہیں اور دین اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ اس میں اولاد پر سب سے پہلی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ والدین کی ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو کس طرح زندگی گزارنے کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت ہوگی اور اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی، اے مالک کائنات، میں تو جہنم میں جا رہی ہوں، لیکن سب سے پہلے میرے باپ کو بلایا جائے۔ اس کے باپ کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گی، اے مالک، یہ میرا باپ ہے، میری تعلیم کا زیور اس کے ہاتھ میں تھا، یہ بچپن سے مجھے جس طرح کی تعلیم دیتا میں وہ تعلیم حاصل کرتی، لیکن اس نے مجھے ہر طرح کی تعلیم دی، اس نے مجھے بچپن سے لے کر بڑا کیا، لیکن اس نے مجھے دین اسلام کی تعلیم نہیں دی۔ میرے جہنم میں جانے کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ یہ میرا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس عورت کو بھی جہنم میں ڈالو اور اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ عرض کرے گی، اے مالک، میرے بھائی کو بلایا جائے۔ اس کے بھائی کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گی، اے مالک کائنات، یہ میرا بھائی ہے، یہ ہر وقت میرے اوپر نظر رکھا کرتا تھا کہ میری بہن کیا کر رہی ہے، میری بہن کہاں جا رہی ہے، لیکن میں نے جب کچھ غلط کام کیا تو اس نے میرا ساتھ دیا، نہ کہ مجھے روکا۔ میرے جہنم میں جانے کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ میرا بھائی بھی ذمہ دار ہے۔ حکم ہوگا فرشتوں کے کہ اس کو بھی جہنم میں ڈالو، اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈالو اور اس کے بھائی کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ عرض کرے گی، اے مالک کائنات، میرے شوہر کو بلایا جائے۔ اس کے شوہر کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گی، اے اللہ، یہ میرا شوہر ہے، جب میرے والدین نے مجھے بچپن سے لے کر بڑا کیا، اس کے بعد میرا نکاح کیا جو اس شخص سے کیا تھا، نکاح کے بعد میری جو زندگی تھی وہ اس شخص کے مطابق تھی، اگر یہ مجھے کہتا، اس کے ہاتھ میں طلاق دینے کا، اس کے ہاتھ میں طلاق تھی، اگر یہ مجھے کہتا کہ تو نماز نہیں پڑھے گی، تو اگر قرآن نہیں پڑھے گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں کچھ بھی کام کرتی تھی تو یہ مجھے دھمکی دیتا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے یہ دھمکی نہیں دی کہ اگر تو نماز نہیں پڑھے گی یا قرآن نہیں پڑھے گی تو میں تجھے طلاق دوں گا۔ اگر یہ مجھے اس طرح کی دھمکی دیتا تو میں ظاہر ہے کہ اس کی بات ضرور مانتی اور 5 وقت کی نماز ادا کرتی اور قرآن پڑھتی، لیکن اس نے مجھے کبھی دین پر چلنے کو نہیں کہا، اس لیے میرے جہنم میں جانے کا ذمہ دار ایک یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈالو، اس کے بھائی کو بھی جہنم میں ڈالو، اس کے بھائی کو بھی جہنم میں ڈالو اور اس کے شوہر کو بھی جہنم میں ڈالو۔ پھر وہ عرض کرے گی، اے مالک کائنات، میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ میرا بیٹا، اگر میں کچھ اس کی پسند کا کھانا نہیں بناتی تو یہ رو رو کر اس کی پسند کا کھانا بنواتا تھا، اگر اس کو کچھ چیز پسند آ جاتی تو یہ خوب روتا تھا اور اس چیز کو حاصل کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اگر تم یا امی جان اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اس نے کبھی مجھے نماز پڑھنے کو نہیں کہا، اس نے کبھی قرآن پڑھنے کو نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو فیصلہ سنائیں گے کہ اس عورت کو بھی جہنم میں ڈالو، اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈالو، اس کے بھائی کو بھی جہنم میں ڈالو، اس کے شوہر کو بھی جہنم میں ڈالو اور اس کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالو۔ اس طرح ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں ساتھ لے کر جائے گی۔ آج ہم غور کریں کہ ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں کیا کام کر رہی ہے، آج ہم خود غور نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو مستورات کو کھلا چھوڑ رکھا ہے، جو چاہے کرے، ہم کبھی ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے آج کیا کیا، تم نے آج کیا کام کیا، ہم نے انہیں کھلا چھوڑ رکھا ہے۔
हालांकि एक घर का जो जिम्मेदार होता है वो मर्द होता है। मर्द के जिम्मे उसकी बीवी भी है, उसकी औलाद भी है, उसकी बेटियां भी है। अगर ये इनका हक सही सही अदा नहीं करेगा तो कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी अल्लाह ताला सवाल करेगा कि हमने तुम्हें नेक बीवी दी थी, बताओ तुमने उसे कितना दीन सिखाया। हमने तुम्हें औलादें दी थी, बताओ तुमने उनको कितना दीन सिखाया। हालांकि इनकी जिम्मेदारी जो थी वो तेरे ऊपर थी। ना तो तूने खुद कुछ अमल किए, ना तो तूने खुद 5 वक्त की नमाज पढ़ी, ना तूने खुद अपनी बीवी को नमाज पढ़ने की तलकीन करी, ना अपनी औलाद को नमाज पढ़ने की तलकीन करी। मेरे भाइयों, इस बारे में भी अल्लाह ताला कल आखिरत में सवाल करेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? आज हम देखें कि अगर इस बस्ती में 300 घर हैं तो 250 घर ऐसे होंगे कि जिनकी औलादों के पास मोबाइल होगा। सबसे बड़ा फितना जो है इस वक्त में मोबाइल है, और मोबाइल 15, 16 साल की बच्चियों के पास मोबाइल दे रखा है। हालांकि उनके मोबाइल ना देने से हमारा बताओ कुछ नुकसान हो जाएगा। अगर हम उनको मोबाइल नहीं देंगे तो हमारा घर बिगड़ जाएगा, या कुछ घर में परेशानी आ जाएगी, या कुछ धंधे उनके मोबाइल से चल रहे हैं, कोई बिजनेस उनके मोबाइल से चल रहा है। अगर कोई बिजनेस उनके मोबाइल से चल रहा है, या अगर हम उनको मोबाइल नहीं देंगे उसकी वजह से हमें कुछ नुकसान हो जाए, तो हम ये बात मान सकते हैं कि हमें उन्हें मोबाइल देना चाहिए। लेकिन 15, 16 साल की बच्चियां आजकल मोबाइल चला रही है, और हम कभी उनसे ये नहीं पूछते कि आज हम कभी उनके मोबाइल में गौर ही नहीं करते। बताओ, अगर किसी ने अपनी औलाद का मोबाइल चेक करा हो कि मेरी औलाद के पास ये मोबाइल है, ये दिन भर इस मोबाइल में क्या करती है। छोटे छोटे बच्चे, सुबह मोबाइल चार्जिंग होता है, शाम को पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। हमने कभी ये गौर नहीं किया कि मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, ये ऐसा क्या करती है दिन भर के मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो रहा है। हम में से कोई अपनी औलाद का मोबाइल चेक नहीं करता, और इसका नतीजा फिर ये होता है कि हमारी औलाद इंस्टाग्राम पर गैरों के साथ चैटिंग करती है, व्हाट्सएप पर गैरों के साथ चैटिंग करती है। क्यों? क्योंकि हमने कभी मोबाइल चेक ही नहीं करा। अगर हम अपनी औलादों पर नजर रखेंगे तो उन्हें भी हमारा खौफ होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये काम करूं और खुदा न खास्ता गलती से अब्बा के हाथ में ये मोबाइल लग जाए। कभी उन्हें यह डर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि हमने उनको खौफ ही नहीं बिठाया, हमने बस उन्हें मोबाइल दिला दिया। बस अब वो चाहे जिससे भी बात करे, कुछ भी करे, हमें कोई फिक्र नहीं है। और इसी का नतीजा ये हो रहा है कि हमारी मुस्लिम कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग कर शादी कर रही हैं। आज हम देखें कि जहां भी कोई गैर के साथ हमारी बेटियां भाग रही हैं, वो ना तो उसका खालू लगता है, ना चचा लगता है। फिर क्या बात है कि वो हमारी बेटी के करीब आ रहा है। हम खुद गौर करें, ना वो कभी हमारे घर पर आया, ना हमारे घर में किसी से उस मर्द की दोस्ती है, ना वो हमारा कोई रिश्तेदार लगता है। फिर उसके बावजूद हमारी बेटी उससे बात कैसे कर रही है, हमारी बेटी उसके पास कैसे पहुंच रही है, और वह हमारी बेटी के पास किस तरह कैसे आ रहा है। और फिर मालूम हुआ कि इसकी जड़ जो है मोबाइल है। क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है, अगर आप इंस्टाग्राम चलाना चाहे तो कोई गैर हो या ना हो, आप उससे बात कर सकते हैं और उस तक पहुंच सकते हैं। और आज हम देखें कि रोजाना कई वीडियो आ रही है, और आम दिन भी ठीक है, लेकिन रमजान में हमारी बेटियां होटलों में गैरों के साथ जा रही है। रोजाना 2-4 वीडियो मोबाइल में जरूर आ रही है कि आज फला शहर की बेटी उस होटल में पकड़ाई, फला शहर की बेटी इस होटल में पकड़ाई। और बाकायदा जब उस लड़की से पूछा जाता है कि तेरा रोजा है, तो वो कहती है हाँ मेरा रोजा है। लेकिन इसके बावजूद वो कितना बड़ा काम कर रही है। आज हम खुद ये गौर करें, क्यों कर रही है? क्योंकि आज हमें सिर्फ अपनी दुनिया संवारनी है, औलाद की दुनिया संवारनी है। हम अपनी औलाद का एडमिशन बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में करा देते हैं, एडमिशन कराने चले जाते हैं, कुछ तो नहीं जाते हैं। कई जगह देखा गया कि जो फ्रेंड्स होती है, आपस में 2-4 फ्रेंड्स मिलकर कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है। बाप कभी ये गौर नहीं करता कि मेरी बेटी ने एडमिशन लिया है जिस कॉलेज में, वो कॉलेज कैसा है, क्या तालीम दी जाती है, कभी हम गौर नहीं करते। फिर जब उस कॉलेज में बेटी पढ़ती है तो गैरों के साथ बातें करती है। और अभी इस वक्त गैर कौमों के अंदर ये तहजीब चलाई जा रही है
کہ 40 लाख लड़कियों को मुर्तद करने की कोशिश की जा रही है, और ना औज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला माफ करे 10 लाख बेटियां इसके चपेट में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने कभी गौर ही नहीं किया। हमने सिर्फ एडमिशन करा दिया, उसके बाद हम कभी गौर नहीं करते कि हमारी बेटियां कहाँ जा रही है। अभी अपने इस शहर का वाकया है, सहरी कर कर बेटी ने बाप से कहा कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब उस बाप में इतनी अकल नहीं कि सहरी के बाद कौन सा कॉलेज है, और अभी इस वक्त कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सब दूर की छुट्टी चल रही है, लेकिन उस बाप ने उससे कुछ सवाल नहीं किया और उसको इजाजत दे दी कि कॉलेज चले जाए। फिर कुछ मर्द फजर की नमाज पढ़ के निकल रहे थे, फिर और देखा कि एक मुस्लिम बेटी गैर मुस्लिम लड़के के साथ होटल में दाखिल हो रही है। जैसे ही उस गैर मुस्लिम ने इन लड़कों को देखा तो फौरन वहां से उस लड़की को लेकर भाग गया। फिर इन चारों ने प्लानिंग की कि हम कैसे ना कैसे करके इनको पकड़ेंगे, और वो चारों छुप गए। फिर वो गैर कौम का जो लड़का था, मुस्लिम लड़की को लेके आया था, उसको लगा कि अब ये चलेगा, अब ये यहाँ पर नहीं है। वो फिर उस होटल में उस लड़की को लेकर आया, और जब उन लड़कों ने उस लड़का लड़की को पकड़ा तो उस लड़के से पहले नाम पूछा तो वो उसने मुस्लिम नाम बताया। फिर उसको खूब मारा, उसका मोबाइल चेक किया तो उस मोबाइल के अंदर कई बूतों के फोटो थे, और उस लड़की से नाम पूछा, उसका एड्रेस पूछा तो लड़की भी बताने को तैयार नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ से आई हूँ। उन लड़कों ने उस लड़की के साथ भी जबरदस्ती की। फिर उस लड़की से उसके घर का पता लिया और फिर उसके घर गए, उसके बाप को बताया कि तुम्हारी बेटी फला फला होटल में जाते जाते हमने पकड़ी है। अब हम खुद गौर करें कि जब इस महीने में खुल्लम खुल्ला हमारी बेटी जा रही है तो हम गौर करें कि पहले कितनी मर्तबा वो उस लड़के के साथ होटल में गई होगी, जो इतना बेखौफ हो कि इतना उसको किसी का डर था, उसके बावजूद वो होटल में जा रही है। हम खुद सोचें कि पहले कितनी मर्तबा वो उस होटल के अंदर गई होगी। और फिर जब उसके माँ बाप के पास उस लड़की को लेके गए, उसके बाप को बताया, उसका बाप भी सो रहा था, उसके बाप को जगाया और बताया कि तुम्हारी बेटी फला फला होटल में इस गैर मुस्लिम लड़के के साथ पकड़ाई है। तो उस बाप ने बताया, पहले तो वो बाप सुन हो गया, कुछ नहीं बोला, 2-3 मिनट रोने लगा। फिर उस बाप ने बताया कि जब सहरी करी तो इसने मुझसे कहा कि अब्बाजान मैं कॉलेज जा रही हूँ, और फिर मुझे लगा कि ये कॉलेज जाएगी और मैंने इसको इजाजत दे दी। हम खुद गौर करें कि ये कॉलेज जाने के बजाय किस रास्ते पर गई। क्यों? क्योंकि हमने इससे उस बाप ने ना इससे कभी सवाल किया था, ना इससे कुछ पूछा था। उसने डायरेक्ट इजाजत दे दी कि जा बेटी जा, और फिर रोजे के अंदर वो होटल में जा रही है। आम दिनों की तो बात अलग है, रोजे में अगर होटल के अंदर जाए तो कितनी बड़ी बात है। इसमें इसका जिम्मेदार जो है वालिदैन है। क्यों? क्योंकि वालिदैन कभी गौर ही नहीं करते कि हमारी बेटी किस लड़के से बात कर रही है, हमारी बेटी किससे बात कर रही है, हमारी बेटी कॉलेज जाती है तो सीधे कॉलेज जा रही है या नहीं जा रही है। दूसरा, फिर हमने अपनी औलाद को बिला वजह मोबाइल दे रखा है। हालांकि मोबाइल की उस औलाद को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि फला के पास भी मोबाइल है, हमारी औलाद के पास मोबाइल नहीं है, हमारी औलाद के पास भी मोबाइल होना चाहिए। फिर जब मोबाइल दे देते हैं तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं रहती कि हमारी बेटी क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है। और देखा जाए तो मोबाइल सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बात करने के इस्तेमाल में आता है। हम खुद ये गौर करें कि वो 15 साल की बच्ची, वो 16 साल की बच्ची, वो किससे बात करेगी, उसको क्या जरूरत है, क्या खाला से बात करेगी, क्या चच्ची से बात करेगी, क्या नानी से बात करेगी, उसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद हमने अपनी औलादों को खुला छोड़ रखा है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है। दूसरा, हमने हर तालीम अपनी औलाद को दी, लेकिन कभी दीन की तालीम नहीं दी। हमने कभी उससे ये नहीं कहा कि फला जगह तालीम होती है, फला जगह मस्तूरात की तालीम होती है, तो वहां चले जा। हमें इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। जब औलाद के दिल में अगर दीन ही नहीं होगा, उसको ये बात ही मालूम नहीं होगी कि इस्लाम क्या चीज है, दीन क्या चीज है, अगर उसको ये बात मालूम ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है गैर कौम के लड़के आएंगे और उसको बहकाएंगे, और वह आसानी से उसके बहकावे में आ जाएगी। आज हम अपनी इस बस्ती के अंदर गौर करें, जब बुध के दिन तालीम होती है मस्तूरात की,
तो 300 घर है, 300 घर में कितनी मस्तूरात होगी। इन सब के बावजूद जब वहाँ पर पता लगाया जाता है तो तालीम में मालूम होता है कि 10 से 15 मस्तूरात सिर्फ तालीम में आई है, बाकी को फिक्र ही नहीं है। ना माँ बाप को फिक्र है, ना औलाद को अपनी फिक्र है। और याद रखो कल क़यामत के दिन इस बारे में भी सवाल होना है कि हमने तुम्हें औलादें दी थी, बताओ तुमने इनको क्या तालीम दी। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, आज हर घर की जिम्मेदारी मर्द की होती है और हमें खुद अपनी औलादों पर नजर रखनी है कि हमारी औलाद क्या कर रही है। हमें अगर माँ बाप अगर मोबाइल भी चेक करना चाहे तो औलाद ये नहीं पूछ सकती कि तुम कौन होते हो मोबाइल चेक करने वाले। अगर भाई मोबाइल चेक करे या कोई चाचा चेक करे तो हम मान ले कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अगर औलाद कुछ काम कर रही है तो उससे पूछे कि तू ये क्या काम कर रही है, तू मोबाइल में क्या कर रही है। और आए दिन अपनी औलाद का मोबाइल चेक करे कि वो उसने मोबाइल के अंदर क्या किया, किससे बात करती है, किससे नहीं करती है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।